हेलो, हाउ आर यू ऑल आर गुड। बायो का पेपर कैसा हुआ? अब तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर बायो पेपर। जो पढ़ाया हमने वही क्वेश्चंस आए हैं। आप अब तक के वीडियोस देख लीजिए, जो हमने पढ़ाए हैं उसी में से ही वही क्वेश्चंस आए। कल के वीडियो में ही मैंने आपको कहा था कि चैप्टर 2 में से कितने डायग्राम आएंगे, वही देखिए डायग्राम्स आए हैं। ओके, तो इस तरह से चलिए आज हम हमारा पेपर सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, an example of parthenocarpic fruit. Which is the example of parthenocarpic fruit? Banana, apple, strawberry या walnut? So what is the right answer? Option A, banana. Banana, this is the right answer. Now, water pollinated plant that grow in fresh water is, जो water pollinated plant है, this is the option B, Vallisneria. Okay. Now, the next question is, which hormone is involved to induce parturition? कि इसके अंदर कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है इन पार्चुरेशन? तो व्हाट इज द राइट आंसर? प्रोलैक्टिन, एड्रेनालिन, ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्टेरोन? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन. नाउ द next question. Some region of chromatin are loosely packed in a typical nucleus. This they are called. कि जो some regions की chromatin are loosely packed in typical nucleus, जो typical nucleus के अंदर loosely packed होते हैं, तो they are known as the euchromatin, histone, न्यूक्लियोसोम या हेट्रोक्रोमेटिन. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, यूक्रोमेटिन. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, who rediscovered the result of Mendel's inheritance of characters? कि किसने रीडिस्कवर किए थे Mendel's inheritance of characters? Beveridge, Correns and Chemath, Sudden and Bowdry, Sheldon, Schwann and Morgan, Watson and Craig. So what is the right answer? Option A, Beveridge, Correns and Chemath. This is the right answer. Now, the next question is, genetic disorder which is caused due to absence of one X chromosome. कि यहाँ पर यही हमने कल किया था. देखिए, कल हमने रिवीजन में किया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम. यहाँ पे हमारे एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस है. तो डाउन सिंड्रोम, टर्नम सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या हीमोफीलिया. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, टर्नर सिंड्रोम. ओके, नाउ the next question is, probably how many million years ago evolution of jawless fish occurred in geological period? तो यहाँ पर आपको बताना है probably. This is the 500. Option A, this is the right answer. 500 million years ago. Okay, now the next question. In ecological terminology, what are green plants called? ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी या टर्शरी? वेरी इजी क्वेश्चन. दिस इज द प्रोड्यूसर. ओके, तो ये क्या होगा? प्रोड्यूसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट्रोसोम इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म? ह्यूमन स्पर्म के किस पार्ट में एक्ट्रोसोम प्रेजेंट होता है? टेल, मिडिल पीस, हेड या नेक? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, हेड. दिस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज,
Which of the following is not part of male reproductive system? Male reproductive system का कल हमने डायग्राम किया था. तो which of the following is not a part of male reproductive system? Ampulla, prostate, foreskin या bulbourethral gland. So what is the right answer? Option A, ampulla. Ampulla, this is not a part of male reproductive system. This is the part of female reproductive system. Now, the next is if species A positive, species A कैसी है? Positive, and species B is negative in population, the name of interaction will be कि species A मतलब species A को तो benefit मिल रहा है, but species B क्या है? Negative, उसको benefit नहीं मिल रहा, उसको harm हो रहा है. तो this type of interaction will be, इस interaction को हम क्या कहेंगे? Parasitism. This is known as the parasitism. Now, ये भी हमने कल किए थे, competition parasitism के बीच में difference. Okay. Now, the next is pyramid of biomass in the sea are generally, कि जो biomass pyramid sea are generally, सी का जनरली बायोमास पिरामिड क्या होता है? तो सी का जनरली जो बायोमास पिरामिड होगा कैसा होगा? स्ट्रेट होगा, अपराइट होगा, इनवर्ट होगा या ऑल काइंड? सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, इनवर्ट. कैसा होगा? इनवर्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not a sexually transmitted disease? ये देखिए, ये वही आ गया कि हमने कितनी बार किया है sexually transmitted disease. Which of the following is not a sexually transmitted disease? कौन सी नहीं है sexually transmitted disease? Gonorrhea, herpes, syphilis या tuberculosis? So what is the right answer? Tuberculosis. बाकी तो सारी क्या है? Transmitted disease है, but tuberculosis, this is not a transmitted disease. Okay. Now, which nitrogen base is found in both DNA and RNA? कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो DNA and RNA दोनों में मिलता है? Which nitrogen base pair is present? Yes. Cytosine, thymine, uracil या all of the above? What is the right answer? Very easy. This is the cytosine. क्योंकि थाइमिन कहाँ मिलेगा? डीएनए में. यूरेसिल आपको मिलेगा सिर्फ आरएनए में. थाइमिन आपको सिर्फ मिलेगा डीएनए में. ठीक है. तो ऑल ऑफ द अबव. व्हाट इज द राइट आंसर? साइटोसिन. दिस इज द राइट आंसर. कि साइटोसिन ही ऐसा है जो डीएनए में भी मिलता है और आरएनए में भी मिलता है. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. microorganism found in the form of biofertilizers. कि बायोफर्टिलाइजर्स के फॉर्म में कौन मिलता है? एग्रोबैक्टीरियम, बैसिलस thuringiensis, बैक्यूलोवायरसिस या राइजोबियम? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी, राइजोबियम. दिस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज which species of plasmodium cause most severe and fatal malignant malaria? ये देखो कल हमने किया था. ठीक है. तो व्हाट इज द राइट आंसर? दिस इज द आपका ऑप्शन सी. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज natural cannabinoid is obtained mainly from which part of the cannabinous sativa plant? कि जो नेचुरल कैनाबिनॉइड है, कैनाबिनस पादप के जो कैनाबिनस प्लांट है उसके किस पार्ट से हमें मिलता है? किससे मिलेगा? रूट, लीफ, थैलेमस या इन्फ्लोरोसेंस? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी, इन्फ्लोरोसेंस. दिस इज द राइट आंसर. नाउ What does the O derive from the eco-R1? मैंने आपको कल ही कहा था कि eco-R1 के अंदर आप लोगों को इसका वो भी लर्न करना है कि E किसको डिनोट करता है, CO किसको डिनोट करता है, RI किसको डिनोट करता है, R किसको करेगा, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये किसको डिनोट करेगा. तो what does the CO derive from the eco-RI? This is the order. CO किसको करेगा? ऑर्डर को. ओके. नाउ
These are the fill in the blanks. Now, let's start fill in the blanks. The first is the ovulation is followed by the luteal phase during which the remain part of the Graafian follicle transform as. So what is the right answer? Corpus luteum. तो यहां हमारा क्या आंसर रहेगा? कॉर्पस ल्यूटियम. ओके, नाउ the next is deletion and insertion of base pairs of a DNA cause. यानी हमने किया था ये. This is the frame shift mutation. Frame shift mutation. Okay, now some amino acids are coded by more than one codon. For this reason, such codons are called. So this is called as degenerated codon. Degenerate code. So these are known as the degenerate code. Now, the next is the dough which is used to make bread is fermented by yeast. This is called, कौन सा है? The dough which is used to make bread कि इसमें fermented by yeast called, मैंने कहा था आपको, this is the important Saccharomyces cerevisiae. Okay, तो क्या है आपका? Saccharomyces cerevisiae. ओके, ये हमने कल ही किए थे. Okay, now the next is the first clinical gene therapy was given in 1900 to a 4-year girl to cure deficiency of. So deficiency किसकी थी? ADA. This is the ADA deficiency. Adenosine deaminase. Okay, now the next is leading cells synthesize and secrete testicular hormone called as. This is the testosterone. The hormone is testosterone. Okay, now the cutting of DNA at a specific location become possible with the discovery of molecule seizure called as restriction enzyme या फिर endonuclease. Restriction endonuclease enzyme. Okay, now the next is Saheli named contraceptive pills was developed by Central Drug Research Institute, city in India. कहाँ पर है? This is the Lucknow. करा था ना हमने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. Yes. Next, when more than one adaptive radiation have occurred in an isolated geographical area, this is called as. कौन सा evolution कहलाता है? Convergent evolution. This is known as the convergent evolution. The brain capacity of Homo habilis man was. The brain capacity कितनी है? 650 to 800 cc. Okay, the brain capacity is 650 to 800 cc. Now, define amniosynthesis. What is amniosynthesis? क्या है amniosynthesis? तो क्या करेंगे, इसमें amniotic fluid निकाला जाता है और उसको फिर उससे जो डिसऑर्डर था उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्लूइड जो को है उसको क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे. ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉल करेंगे और उसके बाद जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ राइट द कॉज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर.
आपको जेनेटिक डिसऑर्डर का कॉज बताना है एंड क्लाइनफेल्टर राइट द कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का बताना है। तो व्हाट हैपन इन द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक है, क्या हो गया, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, और कितने हो जाते हैं 47 एक्स एक्स वाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम एड ऑन हो जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज which fungus is used as biological control in the treatment of plant disease। तो what is the fungus, कौन सी होती है, ट्राइकोडर्मा। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा, ट्राइकोडर्मा। ओके, नाउ the next is which nematode infected the roots of tobacco plant and causes a great reduction in the yield। This is the Meliodizin ecognitia। Okay, now the next question is define immigration। क्या होता है इमिग्रेशन, तो मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल कहां से होता है, पॉपुलेशन फ्रॉम द अदर, ठीक है, तो यहाँ पे इमिग्रेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू अ पॉपुलेशन फ्रॉम अनदर। मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, into a population from the other increase। Increase in size। Okay, now which color cannot be discriminated by the person in color blindness, कौन सा होता है, red and green। Okay, which pathogenic bacterium cause typhoid fever in human, so this is the salmonella typhi। कल भी बताया था मैंने आप लोगों को, this is the salmonella typhi। Okay, the protein that controls pollen bollworm is encoded by which gene, this is the cry gene। Okay, now the next question is what does A and B represented in the above mentioned diagram of the mature embryo sac, write the name of each। तो A क्या हो जाएगी आपकी एक्सेल and the B is synergid। Okay, now the next is write parasitism by given example in population interaction। तो what is the parasitism, अभी हमने आगे एमसीक्यू में भी देखा था, तो इसमें पैरासिटिज्म में क्या होगा, वन स्पीशीज को क्या मिलेगा, बेनिफिट, और अदर को क्या मिलेगा, हाँ, तो एक जो वन स्पीशीज है उसको तो क्या मिलेगा, बेनिफिट, ठीक है, वन स्पीशीज को, और सेकेंड स्पीशीज को हार्म। ठीक है, आप लिख सकते हो प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बींग्स। ओके, दिस इज द एग्जांपल। Now explain in situ conservation. How many national parks are currently in India? तो what is in situ conservation? तो in situ conservation में हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम। हम किसका प्रोटेक्शन करते हैं, इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन करते हैं, नेचुरल हैबिटेट का प्रोटेक्शन करते हैं। और हाउ मेनी नेशनल पार्क, तो दिस इज द 106 नेशनल पार्क आर करेंटली इन इंडिया। तो कितने नेशनल पार्क है, 106 national park are currently in India। Okay, now the next is
एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी के अंदर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बताना है। तो इसके अंदर हनी बी के अंदर अगर हम फीमेल में देखें तो फीमेल में कितने होते हैं 2n, ठीक है, और मेल में कितने हैं n, ठीक है। और इसके अंदर आपको उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है पार्थेनोकार्पिक रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन फीचर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन व्हेन क्लोनिंग इनटू वेक्टर। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मैंने कहा था कि वेक्टर की इंपॉर्टेंट है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये क्या करता है अमाउंट रेप्लिकेट ऑफ वेक्टर इन होस्ट सेल, अमाउंट रेप्लिकेट वेक्टर इन होस्ट सेल, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन हाउ ट्रांसजेनिक एनिमल आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। कितना आपको कितना कहा था मैंने ट्रांसजेनिक एनिमल कितनी बार आया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फिर से आ सकता है। तो द अगेन ट्रांसजेनिक एनिमल, हाउ ट्रांसजेनिक एनिमल आर यूज्ड। तो हमने ये कल भी किया था कि किस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज। क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल जेनेटिक मॉडिफाइड जो हम एनिमल्स के अंदर करते हैं। तो दिस इज द जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, ठीक है। आर यूज इन प्रोड्यूस ह्यूमन के अंदर आप थेरेपेटिक इसके अंदर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो एक्सप्लेन ट्रांसजेनिक यूज प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज में लेते हैं, ठीक है। ओके नाउ व्हाट इज कॉल्ड बायोलास्टिक एंड जीन गन। अभी हमने कल ही किया था ये क्वेश्चन, बायोलास्टिक एंड जीन गन। तो व्हाट इज कॉल्ड बायोलास्टिक एंड जीन गन, क्या होते हैं ये। दिस इज द माइक्रो इंजेक्शन जो हम क्या करते हैं फॉरेन डीएनए को प्लांट सेल में क्या कराते हैं इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो किस टेक्निक के थ्रू बायोलास्टिक एंड जीन गन के थ्रू हम उनको क्या कराते हैं इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। इसमें हमने लिखा था बॉम्बेरिंग और हाई वोल्टेज बोल्ट टंगस्टन कोटेड डीएनए, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल, ये हमने इसके अंदर एग्जाम्पल किया था कल ही। एक्सप्लेन लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें क्या होता है इंक्रीज होती है बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज होती है फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, इंक्रीज होती है बायोडाइवर्सिटी, क्या होती है इंक्रीज होती है फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, पोल से इक्वेटर की तक इंक्रीज होती है, ठीक है। ड्रॉ अ लेबल सिस्टमैटिक, देखो मैं आ गया ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने आपको कल ही कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम देख लेना, कितने सारे डायग्राम्स आपको बताए थे कि ये सारे डायग्राम आप देख लेना। तो ये देखो ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बीइंग। ओके नाउ द नेक्स्ट इज होमो, इसके अंदर मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। तो द फर्स्ट इज होमो हिबिलस, होमो हिबिलस तो प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, तो इसका आएगा ए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस, तो होमो इरेक्टस का आ जाएगा फर्स्ट प्रोबेबली एट मीट, ठीक है। डायोप्थिकस, तो डायोप्थिकस का आ जाएगा आपका was more apt life, okay। यहाँ देखो ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का भी स्ट्रक्चर हमने करा था हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन ऑक्टामर डीएनए, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। नाउ दिस इज द सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसके अंदर डिफाइन पॉलिनेशन, एक्सप्लेन कैस्मोगैमस एंड सेलिस्टोगैमस फ्लावर। देखो डिफाइन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना टू द स्टिग्मा, ठीक है। ओके अब यहाँ पे हमने कल ही कितने सारे डिफरेंस किए थे कैस्मोगैमस सेलिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस कैसे फ्लावर होते हैं ओपन फ्लावर होते हैं और सेलिस्टोगैमस
क्लोज फ्लावर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर कैस्मोगैमस के अंदर आप लिख सकते हैं रोज, एग्जाम्पल में मस्टर्ड, सैलिसोगैमस में वॉयला, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन, ड्रॉ अ लाइन डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। मैंने कल लास्ट में कहा था कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वाले सारे आपको लर्न करने हैं कि जितने भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाले जितना भी की क्या प्रोसेस है, एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन का क्या प्रोसेस है, ट्रांसलेशन का क्या प्रोसेस है, तो दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है डिफाइंड ट्रांसक्रिप्शन, हमने सेंट्रल डॉग्मा भी किया था। ओके, तो क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। ओके, नाउ इसको आपको लाइन डायग्राम बनाना था, ठीक है। Define agent of pollination, explain pollination in wind pollinated plant। तो इसके अंदर डिफाइन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, कितने सारे एजेंट है, विंड है, आपके पॉलिनेटिंग एजेंट आपको लिखने हैं, जैसे आ गया आपका विंड आ गया, वाटर आ गया, ठीक है, इंसेक्ट्स आ गए। एक्सप्लेन पॉलिनेशन इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट, तो उसके क्या होंगे, तो जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट के होंगे, लाइट होंगे, ड्राई होंगे, ठीक है, लाइट वेटेड होंगे, ड्राई होंगे, ठीक है, एक्सपोज्ड होंगे, आर एक्सपोज्ड। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, मेज है, व्हीट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राइट एनी वन साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ड्रॉ अ डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल। ये देखो ट्रांसफर आरएनए का डायग्राम भी आ गया, ट्रांसफर आरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल की जो हमने ट्रांसफर आरएनए का डायग्राम बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे द साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, मैप्ड 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर फॉर्म करते हैं। दिस इज द साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीवेज, व्हाई कैन सीवेज बी हार्मफुल टू अस। जो जितना भी वेस्ट है, दिस इज नोन एज द सीवेज। और ये किस तरह से हार्मफुल है, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, तो वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट, तो यहाँ पर आपको बताना है पेस्ट, प्लांट, ठीक है, पेस्ट प्लांट्स पे, ठीक है। आप इसके अंदर एग्जाम्पल दे सकते हैं, बैसिलस thuringiensis, ओके, इसका आप ट्राइकोडर्मा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द ऐसे टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर। देखो सिस्टमैटिक डायग्राम हमने कल ही किए थे, एक्वेटिक पिरामिड, ये आपका बायोमास पिरामिड, एनर्जी पिरामिड, कितने सारे पिरामिड हमने कल ही किए थे, ठीक है। तो ड्रॉ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर, इसका आपका नंबर का डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसके अंदर आप ग्रास, रैबिट, स्नेक, ठीक है, ये एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है, स्नेक। तो ये आपको पिरामिड बनाना है, कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा, ठीक है। एक्सप्लेन इथोस नेचर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम बाय एग्जांपल। तो एक्वेटिक के अंदर कौन सा आ जाएगा, पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। पॉन्ड वाला इकोसिस्टम का आपको बनाना है, जिसके अंदर हमने फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, बैक्टीरिया, जूप्लैंक्टन और उसके बाद बैक्टीरिया, ये कल ही हमने किया था, ठीक है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम का आपको डायग्राम बनाना था, ठीक है।
Now, the next question is ड्रॉ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास। देखो बायोमास वाला भी आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ठीक है, फिश, जूप्लैंक्टन, आपको पूरा डिस्क्राइब करना था। डिस्क्राइब प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन के अंदर आप बताएंगे किस तरह से फ्रेगमेंटेशन की क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन हो गया इसका, ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से बताना था। द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन टू सिम्टम ऑफ टाइफॉइड डिजीज। टाइफॉइड डिजीज के टू सिस्टम, एक्सप्लेन मेन सोर्सेज ऑफ टाइफॉइड डिजीज इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो टू सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड डिजीज, तो टाइफॉइड डिजीज के आप क्या बता देंगे, प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर, प्रोलॉन्ग्ड इसका हाई फीवर आ जाएगा, ठीक है। मिनरलाइजेशन आ जाएगा, इसके अंदर एब्डोमिनल पेन आ जाएगा, ठीक है। कितना रहता है, 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। एक्सप्लेन मेन सोर्सेज ऑफ टाइफॉइड डिजीज इन्फेक्शन, क्या है मेन सोर्सेज, ठीक है। इसके अंदर आपका टाइफॉइड डिजीज का मेन इन्फेक्शन था, उसके अंदर आपको बताना है कि क्या क्या मेन सोर्सेज है, किस किस से आपके टाइफॉइड डिजीज हो सकती है। एब्डोमिनल पेन भी इसके अंदर होता है, तो किस तरह से होता है आप इसके अंदर बताएंगे। नाउ the next is explain two symptoms of malaria disease। मलेरिया डिजीज के टू सिम्टम्स आपको बताने हैं। तो इसके अंदर टू सिम्टम्स ऑफ मलेरिया डिजीज क्या बता सकते हैं, हाई फीवर, ठीक है। उसके बाद शिवरिंग आ गया, हेडेक आ गया, ओके। एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। हमने कल ही पूरा प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल स्टडी करी थी, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल हमने कल ही स्टडी करी थी, तो वो पूरा ही आपको यहाँ पे स्टेजेस बताने हैं। स्पोरोजॉइड स्टेज, फिर वो किस तरीके से फीमेल एनाफिलिस के अंदर, और उसके बाद फिर ह्यूमन उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स को किस तरह से इफेक्ट करती है, ठीक है, किस तरह से वो रिलीज होती है। और उसके बाद कि जो पूरी जो लाइफ साइकिल का पूरा हमने डायग्राम जो एक्सप्लेन किया था, वही सारा डायग्राम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था, ओके। तो ये हमने आज पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, ओके। तो ये आपको इस तरीके से सारा पेपर पूरा एज इट इज वही था जो हम लोगों ने पहले इसको सॉल्व किया था, ओके। नाउ आप इससे पेपर से अपना पेपर चेक करेंगे, टैली करेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट।